First of all, millions and millions of congratulations. Thank you, sir. Thank you. And millions For thank you for your guidance, sir. surely you are welcome. And the most important thing is that you have got a seat in general category, being in EWS, general Yes, merit number 28. So it's amazing. yes, sir. Yes, sir. Sweet. Sir, I was very happy that my interview was very nice. I thought because I was very confident and I never lost the eye contact. मतलब मेरा बराबर आई कॉन्टेक्ट था. मतलब मैं कभी नर्वस ही नहीं हुई पूरे इंटरव्यू Great, में. great. एंड इवन इट वाज 12 मिनट और 12 to 13 मिनट इट वाज. एंड ज्यादातर मुझे खड़े ही रह के सवाल का आंसर करना पड़ा. उन्होंने मतलब लास्ट निकलते निकलते भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा. तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था. आई वाज वेरी हैप्पी That's फॉर great, दैट. great. And I am happy that a few days back I was interacting you as a candidate, and now I'm interacting as an assistant professor. Yes, Yes really, sir, I'm I was proud of very you. happy. You can see the happiness on my face also that I'm very happy. Surely, 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 that's great. So, the purpose of this interaction is you are going to be the national face, you are going to be the changer of this nation. So, Yes sir. definitely, you are going to be the inspiration for thousands of girls like you who are going to be in this profession, who are looking for this type of profession and not Yes sir. getting guidance, where to start from. Yes So sir. this interaction will definitely give guidance to lot many candidates like you who will be inspired by your words. Yes sir. Yes sir. So that is the Definitely. main motive of this interaction. So before I ask anything, can you introduce little bit about yourself so that people will be able to connect with you, that they are also from the same background from where you belong? Yes, sir. I'm from very not I'm from middle class family, not very high, but we can say that not very मतलब थोड़ा सा ऊपर है बट मिडिल क्लास में ही आते हैं. बहुत पुअर भी नहीं है. लेस देन पुअर बट उनसे है मिडिल क्लास पे लेस ही है वी आर. And I'm from a village where no girls were not allowed to go to Allahabad for higher education. It is said that after completing their intermediate, they are supposed to be married. And even in my family, like my cousins and other girls, they are married after 12 or just completing their BA. And one thing I found that yes, if this is and my schooling is done from government schools. Like the people prefer uh, private schools. They think Privates. that they are. But I'm from government and I feel proud that because मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं. गवर्नमेंट टीचर्स सर दे आर वेरी वेरी नाइस. मतलब दे आर लर्नेड and they are very helpful for me. They have guided me. One of I have मतलब personally I have a teacher uh, Ashokanand Misra, and he has given me a slip that after MA you will do this and you will do. I have the slip. अभी अभी तक वो मेरे पास slip है कि मुझे क्या करना है. He's given me. तो मैं बहुत मतलब उससे थी. फिर मैं जब मेरा बीए में एडमिशन हुआ, मैं पहली लड़की थी जिसका मतलब बहुत सारे लड़कों ने दिया था लेकिन किसी का एडमिशन नहीं हुआ था. मैं ऐसी थी जिसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था. एट द टाइम 2013 मेरा बीए में एडमिशन हुआ था. आफ्टर फर्स्ट ईयर तो मुझे लगा पता नहीं आई विल गो जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी. ऐसे हुआ. फिर मैंने बीए किया. फिर एमए भी किया. पहले मैं एमए पॉलिटिकल से करना चाहती थी बट फिर मार्क्स अच्छे नहीं है. फिर मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश मुझे अच्छा भी लगता था. इंटर में भी मेरा अच्छा था. फिर मैंने इंग्लिश से एमए किया क्योंकि बहुत लोगों ने बोला इंग्लिश से एमए करोगी नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता. मतलब बहुत ज्यादा इतना डरा दिया था सर. लगता था एमए ही नहीं कर पाएंगे. और मैंने कभी कोचिंग नहीं की. मतलब मैंने ना बीए में कोचिंग की ना एमए में कोचिंग कभी नहीं किया. मेरे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे. मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक मतलब एक प्राउड की बात है कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं. इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं. कुछ लोग ये भी कहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ोगी क्लासेस नहीं चलेंगी, दंगा होगा, नेतागिरी होगी. आई थॉट यार पता है. तो इवन सर मतलब इन फर्स्ट ईयर कुछ कंफ्लिक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ द लीडर्स जो होते हैं वहां पे. लेकिन फिर भी प्रॉपर क्लासेस चली है. हमारे प्रोफेसर ने एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हमको पढ़ाया है. इस तरीके से हुआ. फिर मैंने
कंप्लीट करने के बाद मुझे पता नहीं था कि नेट क्या होता है। फिर आई स्टार्टेड नेट किया। तो जब मैंने नेट पहली बार दिया तो मैं थोड़ा सा क्लोज थी, लेकिन लोगों ने बोला कि कैसे करोगी, नहीं होगा, इतना दूर हो तुम, अभी भी दूर हो, तुम नहीं कर सकती हो। फिर मैंने गाइडेंस लिया, एक कोचिंग ज्वाइन की, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा मैंने। फिर मैंने नेट क्लियर किया। जब मेरा नेट क्लियर हो गया तो फिर मैंने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया। फिर मैंने बीएड भी किया और ग्रेजुएशन मतलब बीएड किया, फिर पीजी सॉरी उसके लिए जब जेआरएफ हो गया तो फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया। और मैं एक और बात करना चाहूंगी कि जब मेरा जेआरएफ हो गया तो आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। मुझे लगा कि पीजीटी होता ही क्या है, पीजीटी हो जाएगा मुझसे। और जब मैंने पीजीटी का एग्जाम दिया तो मेरा क्लियर भी नहीं हुआ। तो ये एक मतलब मिस्टेक मैं बता रही हूँ कि मैंने जो की, मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, अरे मैं तो जेआरएफ हूँ, पीजीटी क्या होता है, ये तो हो ही जाएगा। फिर जब मेरा पीजीटी में नहीं हुआ तो मुझे लगा झटका। देन आई स्टार्टेड कि हायर में कर ही जाना है, चाहे जो भी करना हो। देन स्टार्टेड, मैंने सिलेबस उठाया। फर्स्ट मैंने सिलेबस देखा, उसकी पूरी डिटेल नोट्स बनाई, और फिर डिटेल नोट्स बनाई और मतलब स्टार्ट किया अच्छे से, जैसे जेआरएफ के लिए पढ़ा था उसी हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया। तो अभी उसके बाद फिर जब हो गया तो फिर मैं चाहूंगी कि आप मेरी वो आइडियो दिखाएं जिसमें मेरा फर्स्ट इंटरव्यू और मेरा लास्ट इंटरव्यू जब मैं देखती हूँ। मैं अपने फ्रेंड को भी सुबह मॉर्निंग में दिखाया, मैंने कहा देखो ये थी मैं, और जब मेरा लास्ट इंटरव्यू देखो ये हूँ मैं, देखो कितना डिफरेंस है। ये तो यार सही बात है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वो था सर। अब मुझे Surely, लगता है surely, I'll share the clips of first and the last interview definitely in the video. ये सोचते हैं कि लोगों को दिखना चाहिए कि कहाँ से कहाँ मतलब पहुंचे हैं, वो मुझे लगता है वो दिखना चाहिए। What do you mean by the difference between poem and poetry? Poem and poetry. Sorry, sir. The moment I am unable to recall. I will read this topic. I will read this topic. Poem and poetry. What is the difference between a novel and a fiction? Novel and a fiction. Yes. In novel we find some fact also, but in fiction totally they are. Sorry, sir. Both are questions. I'm not aware. Novel and fiction. How will you differentiate a drama and a play? Drama are and play are just for theoretical purpose. They are sorry, wait, I will do. Drama. One is for theater, like when we assume that if play. Sorry, sir, I'm forgetting. I have read this, but I'm forgetting. What is the difference between free verse and blank verse? Free verse and Blank verse in poetry. blank verse. Blank verse is iambic pentameter in unrhymed iambic pentameter. Their meter is defined in, it is iambic pentameter without rhyming. If it is rhyming, it is heroic couplet. If it is iambic pentameter lines, if it doesn't rhyme, it is blank verse. In free verse there is a no meter, no rhyme, there is nothing, like they are free. There is no rhyme, no meter. In but iambic pentameter meter is in blank verse meter is defined, like it will be iambic pentameter. What is foot and meter in poetry? Foot and meter. Foot is one. Foot contains two syllables. Like if it is one stress and it is foot, and the with the help of foot it becomes a meter. The line. Sorry, sir, I am unable to record. Sorry, sir. T.S. Eliot said that Hamlet is an artistic failure. Why? He said that Hamlet is artistic failure because he did not follow the objective correlation. He don't have objective correlation. He said objective correlation is basically the scenes or situation or group or event which are follow the action, and there are some situation or some events which evoke emotion from the reader itself without stating what the emotion should be. As in movies or horror movies, we see that there is no need to say that this is a horror movie.
casuals, and in romantic scenes, flowers, greenery scenes. These are rules. They told their they evoke their emotion by stating something. So it is not uh, uh, portrayed in the Hamlet. But Macbeth, he said that Macbeth sleepwalking scene, other they have objective correlation, but Hamlet don't have objective correlation. That is why it is artistic failure. Reader response theory is basically about the main focus on the reader. Earlier, we have seen that in historical criticism, the main focus on the author. Then, in new criticism, the main focus became the text. They said the text is autotelic, so we should not think about the author. But in late 1960s, the theory came reader response theory. And this theory, given the importance of readers, it is basically the theory in this theory, the main focus on the reader, how they interpret the text. And it said that when the reader interpret a text, their age, their knowledge, their previous experiences, even their present mood is very much affected the interpretation of the text itself. So it is the main focus on the reader itself. And there are many critics related like Norman Holland, Wolfgang Iser, Stanley Fish, and J.R. Ziles. These are the main critics who are the related to reader response critics. जब हम पढ़ाई करते हैं और जब हम 5-6 क्लास में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा एक बार 10th कर लो, बस उसके बाद जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir, कोई प्रॉब्लम नहीं। when you qualify 10th एग्जाम, when you go to 11th, फिर लगता है यार प्रॉब्लम तो बहुत सारी है यहाँ पे। फिर घर वाले बोलते हैं यार आप +2 कर लो, फिर मजे ही मजे हैं। कभी मजे नहीं होते लाइफ में। But the ultimate aim is what you achieved yesterday. Ultimate goal वही होता है class 1 से लेके और PhD तक का जो goal होता है, that is the ultimate goal. So it was really a wonderful journey that you shared. So I'll just ask one thing, that what was your journey for the preparation of the written exam? As I said कि मेरा PGT भी नहीं हुआ था, तो I was very discouraged that how will I do. So I started. Even sir एक बात और, वो जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन मेरा यूपी टेट का भी एग्जाम था। तो माय ब्रदर सेड कि जाने दो, तुम यूपी पीजीटी दे, यूपी टेट दे दो, हायर का मत दो। हाँ, मैंने कहा नो आई विल नॉट, मतलब मुझे तो यूपी टेट नहीं देना, मैं नहीं दूंगी, मैं हायर का एग्जाम दे के आऊंगी। इस तरीके से कॉन्फिडेंस था। मतलब जब मैंने सिलेबस निकाला कि छोटे से शुरुआत की, मतलब आपने कुछ भी किया हो, आप जेआरएफ हैं, आपको लगता है कि मैं हूँ जेआरएफ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप सिलेबस उठाते हैं, जेआरएफ का सिलेबस और इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। मतलब है तो उसी में, क्योंकि उनका तरीका अलग है। जेआरएफ में सिलेबस ज्यादा है सर, तो वो डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछते। यहाँ पे पूछा जाता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में फ्रा पेंडोस का नाम कितनी बार आया। इतना डिटेल क्वेश्चन आप इतना नेट में नहीं पढ़ते हैं, इतना डिटेल क्वेश्चन सोचिए, बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको हर चीज पढ़नी है, हर चीज पढ़नी है। और अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। गाइडेंस मुझे लगता है अगर किसी का ले तो फिर वो बहुत अच्छा होता है। और आप चाहे, मतलब जो लोग मुझे सुनेंगे मैं उनको कहूंगी कि आप शायद रिटन खुद से निकाल लें, लेकिन इंटरव्यू के लिए तो गाइडेंस जरूर लेना चाहिए। अदरवाइज होगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता होगा इंटरव्यू के लिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि जिनके 66 क्वेश्चन सही थे वो भी आउट हो गए रेस से। बिकॉज इंटरव्यू नहीं अच्छा हुआ। इंटरव्यू नहीं अच्छा हुआ तो So after you got your written marks, how sure you were about your selection? Although my brother said that you will got selected, but मुझे लगता है मुझसे ज्यादा मेरा भाई परेशान था कि नहीं, मतलब कुछ कर लो, तुमको करना चाहिए। तो मुझे सबसे ज्यादा, मैं अपनी कमियां जानती हूँ कि मैं बहुत फास्ट बोलती थी, बहुत फास्ट, और फ्लुएंसी, लाउडनेस तो है। इवन मुझे लगता है कि जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगी तो मुझे माइक की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माई वॉइस इज सो लाउड कि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फ्लुएंसी इतनी ज्यादा है, सामने वाला समझ ही नहीं सकता। लाइक
जब आप यूट्यूब में 2x पे वीडियो चलाते हैं तो मैं वैसे ही बोलती थी, अभी तक तो मैं वैसे ही बोलती थी। लेकिन अभी तो फिर मुझे, मेरी एक फ्रेंड है संध्या पटेल, वो आपकी ही स्टूडेंट है सर, संध्या पटेल। तो correct. उसने मैंने उससे पूछा कि कैसे कर रही हो, तो उसने जब आपका नाम बताया तो फिर मैंने कहा कि आई विल ज्वाइन, और मैंने देखा भी, मैंने इम्प्रूव बहुत किया, मुझे लगता है मैंने इम्प्रूव बहुत किया इस तरीके से। Sure, that's really very inspiring for all the candidates who are preparing for this journey. So when you got this message for the first time about the result yesterday, what was your expression and with whom you shared your happiness? Sir, I was crying. 5 minutes I was crying. Oh my My mom came and asked क्या हुआ, मतलब वो जानना चाहती थी कि हो गया। My brother called me, he called me that हो गया। तो then my mother said क्या हुआ, तो मैं 5 मिनट पहले रो ही रही थी। फिर मैंने उनको गले लगाया, फिर मैंने कहा हो गया, तो कि अच्छा चलो हो गया, अब रोना बंद करो, हो गया हो गया। इस तरीके से था। really, really heart touching scene. Yes. यस सर, इट वाज वेरी हार्ड टचिंग, और विद मॉम के साथ तो और वैसे भी हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया था। Would you like to take all the names since beginning जो भी आपके सक्सेस में भागीदार रहे हैं? Would you like to acknowledge those names? यस, मैं तो मतलब शुरू से बात करूं, जैसे स्कूलिंग की बात करूं, तो मैंने आपको बोला कि मेरे एक फेवरेट टीचर थे अशोकानंद मिश्रा। ही वाज वेरी वेरी हेल्पफुल इन माय जर्नी। एंड देन मेरा भाई, वो तो मुझे लगता है इवन नेट में, जेआरएफ में, वो हमेशा मुझे इनकरेज करता है एज अ ब्रदर। जैसे कहता है कि वो कहता है कि मैं हमेशा साथ दूंगा, तो ही हैज गिवन। एंड माय पेरेंट्स आर मतलब बहुत कम पैसे होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया। स्पेशली मेरी मॉम, मतलब उनको लगता है कि मैं जहां भी रहूं मेरे पास पैसे हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये उनकी सोच थी। और मुझे मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे ज्यादा इंस्पायर किया। और उसके बाद मेरे एक मामा जी हैं, उन्होंने ऐसा गाइडेंस दी कि मतलब बीए में क्या करना है, एमए कैसे करना है, उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया। तो वो है। और मेरे 2 भाई हैं, वही है। और फ्रेंड भी है, और मुझे लगता है कि इंटरव्यू के दौरान संध्या जो मेरी फ्रेंड है, उसने, हम दोनों ने काफी इंटरेक्ट किया, और उसने मुझे नाम भी बताया। वो मेरी मतलब थी साथी, तो हम लोग एक दूसरे से करते थे। तो जितने लोग हैं जिनको मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, और पेरेंट्स और मेरा भाई तो बहुत ज्यादा मेरे लिए, मतलब कहते हैं कि भगवान होते हैं, तो मेरे लिए वैसे ही है, बहुत अच्छे। That's और great. आपको तो मैं Great, भूल ही great. नहीं सकती सर, आप मतलब आपका गाइडेंस आपको तो मैं भूल ही नहीं सकती। Okay, that's great. Thank you for this compliment. And also, I hope that जितने लोगों का आपने नाम लिया, they will see this video and they will also feel proud to be your master, your guardians. So that's really amazing. एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो रियल इंटरव्यू हुआ इलाहाबाद में, कैन यू शेयर दैट एक्सपीरियंस? हाँ ये सर, मतलब मैंने कैसे उसको इंटरेक्ट किया, कैसा यस पूरा यस बताना यस चाहूंगी। यस यस। पहले तो मुझे मतलब सभी लोग बाहर बैठे हुए थे, वो 2 का टाइम था, मुझे लगा कि 2 के बाद लंच हो जाता है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि 2 के बाद होता तो अच्छे से नहीं होगा। तो मैं मतलब थोड़ा सा घबरा गई, मैंने कहा मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी, कुछ भी होगा झेल लेंगे, इतना तैयारी करके आए हैं, कुछ भी बोलेंगे झेल लेंगे। तो इस वजह से था। ग्रेट और कॉन्फिडेंस। सब लोग, हाँ, और सब लोग हंस रहे थे, मतलब सर वहाँ एक प्रॉब्लम थी, सब लोग कह रहे थे सबका अच्छा हुआ है। तो मुझे लगा यार सबका अच्छा हो रहा है, तो फिर कैसे होगा, अगर सभी का अच्छा हो रहा है तो फिर कैसे होगा, ये भी थोड़ा सा था। फिर मैं गई, उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर सबसे पहले मैंने गुड मॉर्निंग बोला, पहले मैं 1 मिनट बोला, तो फिर उनको ग्रीट किया, फिर उन्होंने बोला बैठ जाइए। जब उन्होंने बोला तो फिर मैं बैठ गई। फिर उन्होंने मुझसे हाई स्कूल इंटर के परसेंटेज पूछे, और एमए तक के परसेंटेज पूछे। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बोर्ड में पूछा कि किस बोर्ड से हो, तो मैंने बताया यूपी बोर्ड। एंड देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुझे बोलना था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, लेकिन मैंने मिस्टेकली बोल दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया। इतना पूछने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा जेआरएफ कब हुआ, मैंने बताया 2020। देन उन्होंने मुझे करने के लिए बोला, तो फिर मैंने अपना टॉपिक बताया। और जैसे ही मैंने बताया, मैं खड़ी ही थी, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। पहला क्वेश्चन था कि रीडिंग और कैथार्सिस में क्या, मतलब वो दोनों सेम है या अलग अलग है। तो मैंने उनको बताया किस तरीके से होता है, और क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा श्योर नहीं था, ये एनालिटिकल क्वेश्चन था, तो मैं ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और फिर मैम ने एक पूछा कि आप मुझे बताइए रस के बारे में पढ़ा है क्या, इंडियन थ्योरी का जो रासा होता है, मतलब और सारे। तो मैंने कहा नो मैम, आई हैव नो आइडिया। देन आफ्टर दैट अभी मैं मुझे खड़े होके ही सारे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ा। फिर इतने क्वेश्चन के बाद उन्होंने बोला कि बैठ जाइए। देन आई हैव यूज अ कोट दैट जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो सर ने मुझसे पूछा कि
एक मूवी है जंगल में मोर नाचा, सॉन्ग है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने देखा मैंने देखा। तो आप इस सॉन्ग को जानती हैं? तो आई सेड सर नो, मुझे नहीं पता। तो फिर इसके बाद उन्होंने जब मुझसे एज टोटल से कंपैरिजन पूछा था, तो मैंने उनसे एक बोला था कि जब हम whenever we see a play, there is a story where a girl marry where girl is trying to marry a person without the permission of their parents. So if the girl will say, so he said कि she said that हाँ okay अच्छा है, but the parents will say no it's not good, a girl is marrying without permission of their parents। तो हर किसी का कंपैरिजन अलग अलग होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक मूवी है उसमें एक डायलॉग है कि जा जी ले तू अपनी जिंदगी। तो आई सेड या सिमरन जा जी ले तू अपनी जिंदगी। तो फिर उन्होंने इस पे बात की कि हाँ मूवी का नाम पता होना चाहिए, जब आप रियल कंपेयर मतलब रियल लाइफ से जोड़ के एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा अच्छा बच्चों को समझ में भी आएगा। और मूवी भी तो पार्ट ही है, लिटरेचर का पार्ट है, वो अलग नहीं है, ऐसे हो जाता है। फिर उन्होंने मुझसे रीडरली और राइटरली टेक्स्ट पूछा। ये तो मैंने मतलब आपने मुझसे कई बार पूछा था, मुझे लगता है सारे आंसर्स में बेस्ट आंसर मेरा यही था। देन उन्होंने मुझसे एलिनेशन इफेक्ट पूछा, वो भी मैंने अच्छे से बताया। और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टैनली फिश का रीडर इंटरप्रेटिव कम्युनिटी। मैंने आंसर्स तो किया था बट द पर्सन वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो ही सेड दैट यू शुड स्टडी। तो मैंने बोला हाँ यस सर आई विल रीड दिस टॉपिक। एंड देन ऐसे क्वेश्चंस थे और एक दो क्वेश्चन और उन्होंने पूछे थे, मैंने सारे आंसर्स किए थे। और फिर एक बार लास्ट में उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि पता नहीं उन्होंने कौन सा वो यूज किया था कि मेड इन, मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू है? तो आई सेड यस दिस इज फर्स्ट इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला कि जब कोई मूवी जब कोई हीरो या हीरोइन इंटरव्यू मतलब एक्ट्रेस जो होते हैं उनकी पहली मूवी होती है तो उससे क्या बोलते हैं? तो आई सेड डेब्यू होता है, डेब्यू करते हैं। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, अब आप जा सकती हैं। तो फिर उन्होंने कहा ओके सर, फिर मैं चली गई। तो काफी अच्छा इंटरेक्शन था, कॉन्फिडेंट थी मैंने आपको बताया कि मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं बिल्कुल डरी भी नहीं थी। मुझे मतलब जैसे मैंने आपसे एक साथ इंटरेक्ट किया था मुझे वैसे ही उनके साथ इंटरेक्ट करके अच्छा लगा। देवर मतलब पहले लगता था कैसे होंगे कैसे होगा, बट वो भी इंसान ही होते हैं वो भी इंसान ही है, वो भी हमको अच्छा फील कराते हैं। अच्छा लगा, मतलब ऐसा था। आप जो डेमो क्लास की प्रैक्टिस करके गई थी और वहाँ जो डेमो क्लास थी, दोनों में क्या डिफरेंस नजर है? उन्होंने मुझे बोला 5 मिनट में आपको खत्म करना है, और आपने लास्ट वाले में मुझसे 5 मिनट में ही खत्म करवाया था। तो मैं 5 मिनट में खत्म करने में एबल थी। बस ये था कि बस मैंने व्हाइट बोर्ड पे केवल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ही लिखा था, उसके अलावा मैं कुछ लिख नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने मुझे बोला 5 मिनट। तो मैंने बस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी लिखा, उनको समझाया, मैं समझा ही रही थी तो उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, तो मुझे और लिखने का मौका नहीं मिला। बस यही हुआ था, और मैंने जैसे यहाँ पढ़ाया था परफेक्टली वैसे ही पढ़ाया था। अगर इंटरव्यू के बारे में कुछ सजेशन देना हो फ्यूचर कैंडिडेट्स को तो क्या होगा? मेरा यही होगा कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, और टीचिंग के लिए अगर आप कोई भी पर्सन मतलब कोई कुछ भी जैसे हर किसी को सब कुछ नहीं आता है। आप जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई भी टॉपिक अगर वो देते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझाना है, जैसे आप बच्चों को समझाते हैं इस तरीके से समझाना है। कोई परफेक्ट डिफिनीशन नहीं बतानी है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कितने अच्छे से समझा सकते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल अप्रोच हाँ प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और आई कांटेक्ट कभी भी हटाना नहीं चाहिए। मतलब आई कांटेक्ट अभी अगर आप आई कांटेक्ट हटाते हैं इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको आता नहीं है, वो उनको समझ में आ जाएगा कि आपको आता ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इंटरव्यू प्रिपरेशन में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का यही डाउट होता है सर, कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। सो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? मैंने जो खुद किया था, मैंने तो वो एम एच अब्राहम की जो बुक होती है वो मैंने पूरा पढ़ा था। जैसे आपने बोला कि शुरू से पढ़नी चाहिए, थ्योरी आपने पढ़ा है। अगर आप जेआरएफ हैं मतलब आप नेट हैं जेआरएफ हैं तो आपको थ्योरी वाले पोर्शन आते ही है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वो वहीं से उठाते हैं। और अगर आपने पीएचडी की है मतलब आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको अपना टॉपिक याद होना चाहिए। मतलब टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसी में ही रहेगा, कुछ ही बाहर। कुछ लोगों से उन्होंने पूछा कि आपने ये बुक पढ़ी है कि नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है उसका हुआ था, तो उससे पूछा था कि आपने ये बुक पढ़ी है कि नहीं, लेकिन उनको पता ही नहीं था, वो बुक वो पढ़ी ही नहीं थी। इस तरीके से रहता है, तो ये भी रहता है। एक नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को कितना दिन लगेगा इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए अकॉर्डिंग टू यू? ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, 1 महीने से तो कम नहीं लगेगा, 1 महीने से कम नहीं लगेगा मुझे लगता है। क्योंकि अगर वो एम एच अब्राहम पूरे पढ़ेगा
और थ्योरी पढ़ेगा, या फिर और मतलब और एक्स्ट्रा तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही लिटरेचर पढ़ के आए हैं। बीए में आपने क्या पढ़ा है, एमए में आपने क्या पढ़ा है, ये भी थोड़ा रहता है। लेकिन 1 महीने में आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। गुड, वेरी नाइस। फाइनली अगर कुछ वर्ड कहने हैं फॉर द फ्यूचर कैंडिडेट्स ओवरऑल, सो व्हाट विल बी दोस वर्ड्स? मतलब उनको बताना है कि क्या करना है, कैसे। हाँ हाँ, यस, क्या करना चाहिए, मेन फोकस क्या होना चाहिए? मेन फोकस तो ईमानदारी, पहली बात तो ऑनेस्ट रहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी, अगर आप प्रिपरेशन तैयार करने जा रहे हैं तो ऑनेस्ट रहिए। और ऐसा नहीं, मतलब स्मार्ट वर्क करता है, बट हार्ड वर्क थोड़ा सा मतलब करना ही पड़ता है। हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए। आप कुछ चीजें छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये भी छोड़ दूं, मैं वो भी छोड़ दूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूं इसलिए बोल रही हूँ कि आप सरी का ही गाइडेंस लीजिए, किसी का भी गाइडेंस लीजिए, लेकिन गाइडेंस में ही करिए। आप इम्प्रूव करिए। आप अपने फ्रेंड से भी करवा सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने भी कर सकते हैं, अगर उसको पता है तो। चीजों को एक्सप्लेन करिए, ज्यादातर एक्सप्लेन करिए और उसी हिसाब से करिए, तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन काम नहीं है इंटरव्यू करना। अपनी पर्सनालिटी पे भी वर्क करिए। मैंने वहां बहुत लोगों को देखा है कि कुछ भी पहन के चले आए, इवन लड़कियां भी कोई भी ड्रेस पहन के चली आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक प्रॉपर होता है, आप यू आर गोइंग टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो जो फॉर्मल ड्रेसिंग है, फॉर्मल सेंस है, वो होना चाहिए और दिखना भी चाहिए कोड कि ऑफ हाँ, कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। और आप लगने भी चाहिए, मतलब जैसे कहते हैं, आपको फील में आ जाना चाहिए। अगर आपको बोर्ड मेंबर देखे तो लगे कि हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ऑलरेडी हैं। इस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो पता चला मतलब हल्के में सब कुछ नहीं लेना चाहिए, कॉन्फिडेंट लेना चाहिए। और ऐसे मुझे ऐसा लगता है। ईमानदारी और हार्डवर्क तो दोनों चीजें अगर आप रखते हैं अपनी लाइफ में, तो यू विल गेट सक्सेस। जहाँ तक मुझे याद है कि आपने जो इंटरव्यू प्रिपरेशन किया था, यू ज्वाइंड मी वेरी लेट इन कंपेयर टू अदर Yes, sir. कैंडिडेट्स, and when I started grilling you in the mock interviews, and I suggested you to do some hard study, deep studies, तो आपने दिन में कितने घंटे की पढ़ाई की अपने आप को कवर करने के लिए? सर मैंने तो मतलब जैसे पढ़ा तो मैंने था, मुझे आता तो था, लेकिन एक्सप्लेन करना नहीं आता था। तो मुझे लगता है कि आप जितना देर ऐसे मतलब टाइम नहीं मैटर करता, मैटर करता है क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। मुझे लगता है मैंने जितना पढ़ा, मैं 2-2 घंटे अपनी फ्रेंड के साथ चैट कर रही थी, मतलब हम लोग मीटिंग कर रहे थे गूगल मीट। तो आप सोचिए कि मैं पढ़ती भी थी और मैं दो 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 घंटे हम लोगों की वैसे बात ही हो जाती थी। वो क्वेश्चन पूछती थी, फिर मैं उसका आंसर करती थी, फिर वो रिप्लाई करती थी। तो हम लोग एक दूसरे की कमी बताते थे कि अच्छा, ये वाला सेंटेंस तुमने नहीं यूज किया, तुम्हारा आंसर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि 6-7 घंटे तो हो ही जाते हैं। अब आप जैसे ही करें, ऐसा नहीं है कि मैं ये प्रॉपर नहीं कहूंगी कि मैं 6-7 घंटे ही पढ़ रही थी, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं पूरे दिन ही पढ़ती रहती हूँ, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ। तो ये मैं ऐसे नहीं बता सकती, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। वो होना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मैंने काफी लेट ज्वाइन किया था, लेकिन फिर मैंने मतलब मेहनत की थी। जब मैंने पहले दिन वो किया था, जब मैं जैसे अब मेरा इंटरव्यू हो जाता था, उसके बाद मैं ज्यादा पढ़ती थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से मैंने ज्यादा पढ़ना स्टार्ट किया। पहले मैं उतना नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि अरे यार, मैंने तो इसको सही से बताया ही नहीं, तो अब मैं आपको बता रही हूँ सर, एम एच अब्राहम वाली बुक्स मुझे लगता है मैंने 4 बार खत्म की है, 4 बार। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने कैसा पढ़ा होगा उसको। तो मैंने उसको काफी पढ़ा, और केवल पढ़ना नहीं था, उसको एक्सप्लेन भी करते थे, खुद को समझाते थे। और जो मेरी फ्रेंड ने समझा, हम दोनों 2-2 घंटे बात करते थे डेली गूगल मीट पे, 4 से 6, तो ऐसे हम लोग बात करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ऑब्वियसली एक दिमाग में नॉलेज होना और चीज को प्रेजेंट करना, there's a big difference between the two. यस, नॉलेज हर किसी के पास होता है, उसको समझाना हर किसी की बस की बात नहीं है। आप जितना एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हम करने ही क्या जा रहे हैं, हम तो पढ़ाने ही जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हम वही करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, करना पड़ेगा। So now your life is going to be completely changed henceforth, and I expect that we will meet together as an assistant professor. We will meet somewhere in the seminars. Yes, And, sure, sir. I'm very excited that in my life, personally, I want to meet you. If I get the chance, then I will. Surely, I will not miss that chance. If I get, I definitely I will.
Surely we will get connected, and I wish you all the best for your future endeavors.